IJ سندھ کی زیر صدارت ٹاسک فورس کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں منشیات، گٹکا فروشی اور دیگر جرائم کے خلاف بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں کامران مناز سے۔ جی کامران بتائیے گا۔ جی بالکل، IJ سندھ غلام نبی میمن نے چارج لیتے ہی جو ہے ٹاسک فورس کا جو قیام عمل میں لائے تھے، جس میں ABLC، اس کے علاوہ SIU اسپیشل برانچ اور دیگر جو ایجنسیز ہیں ان کے جو افسران اور اہلکار پر مشتمل یہ جو ہے ٹاسک فورس قائم کی گئی تھی، اور اس کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کراچی سمیت پورے سندھ کے جو ہے مختلف علاقے جو ہے وہاں پر جو بھی مجرمانہ سرگرمیاں ہیں، خاص طور پہ گٹکا ماوا، اس کے علاوہ شراب اور منشیات کے خلاف جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے اس کی کارکردگی رپورٹ پر جو ہے ایک جائزہ اجلاس جو ہے IJ سندھ آفس میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں ٹاسک فورس کے جو ہیڈ ہیں ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب منہاس بھی موجود تھے، اور دیگر SSP صاحبان بھی جو ہے مختلف شعبہ جات کے موجود تھے۔ اس حوالے سے جو ہے بتایا گیا ہے کہ صوبائی سطح پر جو ہے ٹاسک کی جانب سے 96 مقدمات جو ہے درج کیے گئے، جس میں 157 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کراچی زون کے جو مختلف علاقوں میں جو ہے 31 چھاپے مارے گئے، اس کے علاوہ حیدرآباد، میرپور خاص، بے نظیر آباد اور سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے چھاپے مارے گئے اور متعدد ملزمان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گرفتار ملزمان سے 195 کلو سے زائد چرس، 6955 لیٹر شراب، 1200 کلو گٹکا اور اس کے علاوہ خام مال، اس کے علاوہ بھنگ کا نشہ کرنے والا جو سامان ہوتا ہے وہ، اور دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ برآمد کی گئیں۔ اس کے علاوہ ٹاسک فورس کی جانب سے جو ہے منظم طریقے سے جو جوئے سٹے کا کام کیا جاتا ہے اس کے خلاف بھی جو ہے مختلف کارروائیاں کی گئی، اور اس میں بھی جو ہے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ IJ سندھ نے ٹاسک فورس کے اس اجلاس سے جو ہے خطاب کرتے ہوئے، ان سے بات کرتے ہوئے جو ہے ٹاسک فورس کی کارکردگی کو سراہا ہے، اور انہوں نے جو ہے افسران کو مزید ہدایت دی ہے کہ ٹاسک فورس جو ہے اس طرح کے کام جو ہے اپنے جاری رکھے تاکہ جرائم کی جو ہے مکمل طور پر بے کنی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ IJ سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو جی کامران، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ انٹر بورڈ سے متعلق تمام معلومات اب ایک کلک پر حاصل ہو سکیں گی۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے آفیشیل اینڈرائیڈ ایپ لانچ کر دی ہے۔ اینڈرائیڈ ایپ کو گوگل پلے اسٹور سے انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ طلبہ اینڈرائیڈ ایپ سے نتائج، ڈیٹ شیٹ، امتحانی مراکز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں کراچی بیورو چیف فہیم صدیقی سے۔ جی فہیم بتائیے گا۔ جی ایک بہت احسن اقدام ہے جو ایک سرکاری ادارے یعنی انٹر بورڈ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ بظاہر تو وہ ایک آٹونومس باڈی ہے، لیکن ظاہر ایک ادارہ بھی ہے، اور جو سرکاری ادارہ بھی ہے اس کی جانب سے یہ ایک کراچی کے طلبہ کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ ایک ایپ، اینڈرائیڈ ایپ آج کے جدید دور میں جس کی ضرورت تھی وہ لانچ کی گئی ہے، اور اس ایپ میں جو فیسلٹیز ہیں، جو انفارمیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے طلبہ کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ابھی ایگزامز ہونے والے ہیں انٹر کے، اسی مہینے ایگزام شروع ہو جائیں گے 24 مئی سے، تو اس حوالے سے اس ایپ میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تمام امتحانی مراکز سے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے، ایون ڈیٹ شیٹ اور جو امتحانی مراکز کی جو لسٹیں ہیں، ان کے ایڈریس، ان کے فون نمبر جو ہیں وہ اس ایپ پہ موجود ہیں۔ اسی طرح اس ایپ میں جو ہے وہ ریزلٹس بھی موجود ہیں، یعنی ابھی جو ایگزامز ہوں گے ان کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ اسی وقت جس وقت جو ہے رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، طلبہ جو ہے اس ایپ کے ذریعے اس رزلٹ کو دیکھ سکیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا طلبہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت کون سا سرکولر انٹر بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، انٹر بورڈ کون سے فارمز جمع کرانے کی تاریخ دے رہا ہے، چاہے وہ رجسٹریشن ہو، چاہے وہ ایگزامینیشن ہو، یا ایفیلیشن کے حوالے سے یا ریکگنیشن کے حوالے سے کوئی فارمز ہوں، وہ ساری انفارمیشن جو ہے اس ایپ کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمام فارمز جو ہیں وہ بھی اس ایپ کے اوپر موجود ہیں، اور یہ فارم جو ہے وہ طلبہ تو کیا ان کے والدین یا کوئی بھی متعلقہ شخص جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت اہم ایپ ہے۔ اس میں ایگزامینیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے کہ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کیا فرائض انجام دیتا ہے، اور اس میں کون کون لوگ جو ہیں ان کا کیا کام ہے۔ اس حوالے سے جو رزلٹ کا اس میں جو ایک باقاعدہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رزلٹ کا جو ایک پورا اس میں ایک آپشن رکھا گیا ہے، اس میں جب آپ رزلٹ اپنا چیک کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ اپنا جو ہے وہ گروپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ٹائپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کس ٹائپ کا رزلٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سرکاری کالجز کا رزلٹ ہے، آپ کا گورنمنٹ کالجز کا رزلٹ ہے یا پرائیویٹ کالجز کا رزلٹ ہے، وہ آپ سلیکٹ کرنے کے بعد اپنا رول نمبر ڈال کر جو ہے وہ اس میں رزلٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا رزلٹ جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رزلٹ میں آپ کے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں، تو اس کا آپشن بھی یہاں دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا میٹرک کا رول نمبر ڈال دیں گے تو آپ کے سامنے
जो है वो मार्क्स भी शामिल हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। इसमें एफिलेटेड कॉलेजेस की लिस्ट भी मौजूद है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, उनका सारा डेटा इस ऐप के ऊपर मौजूद है कि कौन सा कॉलेज जो है वो कहाँ पर वाक़ है, और उसका कोई भी राब्ता नंबर जो है वो तक जो है वो दिया गया है, चाहे वो जो है PTCL नंबर हो या वो जो है कोई मोबाइल नंबर हो। तो एक बहुत ही अच्छी ऐप जो है वो दी गई है। इसके अलावा इसमें एक अहम फीचर जो है जो मुझे नज़र आया, जिसको देख के जो है वो एक इत्मीनान भी हुआ, वो मॉडल पेपर्स का एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मॉडल पेपर्स इस वक्त जो है वो चूंकि कोर्स में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, तो उस तब्दीली के बाद कैसा पेपर तलबा को इस साल मिलेगा वो जो है इसमें बाकायदा मॉडल पेपर्स बनाकर डाल दिए गए हैं। तलबा इसको PDF की फॉर्म में है, ये इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो इसी तरह जो फैकल्टीज़ जो है उनका भी इसमें जो है बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है कि किस फैकल्टी का इंटर बोर्ड जो एक ज़ाहिर एग्जामिनेशन बॉडी है वो किस फैकल्टी के एग्ज़ाम्स लेता है, और वहाँ पर तलबा जो है कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक अच्छी ऐप कराची के तलबा के लिए, कराची के से हर साल जो है वो कई 1 लाख से ज़ायद तलबा जो है वो इंटर के एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी ऐप है कि 1 क्लिक के ऊपर उनके पास सारी मालूमात मौजूद होंगी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, 1 क्लिक पर सारी मालूमात जो है वो 1 क्लिक पर हासिल हो जाएगी। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा अब तक कितने तालिबात जो हैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, और अभी तक कोई इशू तो नहीं आया? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ऐप्स में एकदम से जब लोड बढ़ता है तो वो डाउन हो जाती हैं, ऐप्स स्लो हो जाती हैं। देखिए, ये ऐप जो है आज ही लॉन्च की गई है इंटर बोर्ड की जानिब से, और जाहिर है जब मीडिया के ज़रिए इसकी आगाही तलबा तक जाएगी तो इसको डाउनलोड करने का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। तो अभी ये कहना कि अभी कितने लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है, ये अभी गूगल प्ले स्टोर से ही पता चल सकेगा, या जो है जब इंटर बोर्ड इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो यकीनन हम अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है ये ऐप जो है एक ऐसी ऐप नज़र आ रही है कि जिसके से जो है वो तलबा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि इसी महीने इंटर के एग्ज़ाम्स भी होने जा रहे हैं, तो इंटर के एग्ज़ाम से मुतालिक जो डेट शीट्स हैं वो ज़ाहिर तालिब इल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसका पेपर किस दिन है, कौन सा सेंटर है। तो सेंटर की पूरी लिस्ट यहाँ मौजूद है। ये सेंटर जो है किस इलाके में वाक़ है, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको तलाश करना हो तो वो कैसे। और फिर एक और चीज़ जो मैंने इस ऐप में चेक की और मुझे अच्छी भी लगी कि इसमें बाकायदा तौर पर गूगल मैप भी डाला गया है। अगर आपको किसी एड्रेस को तलाश करना है, अगर आपको अपना सेंटर तलाश करना है, तो गूगल ऐप के ज़रिए जो है, गूगल मैप के ज़रिए जो है आप उस सेंटर को तलाश भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी और फ़ायदेमंद ये ऐप नज़र आ रही है, और उम्मीद है कि कराची के तलबा जो है इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल, इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज ही लॉन्च की गई है ये ऐप, और 1 क्लिक पर तमाम तर तफसीलात कराची के तलबा जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमें तफसीलन इस हवाले से बता रहे थे, इस एप्लीकेशन के हवाले से बता रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर कराची ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों में होश रुपा इजाफा कर दिया गया। दाल माश 40 और दाल मूंग 50 रुपये किलो महंगी कर दी गई। चावल और मुर्गी के गोश्त की भी नई कीमत मुकर्रर कर दी। अशियाए ज़रूरिया महंगी होने पर शहरियों का गुस्सा भी आसमान से बातें करने लगा। महंगाई के सताए शहरियों ने अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची ने ताजिरों के आगे घुटने टेक दिए। आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दाल माश होल सेल में 40 रुपये इजाफे के बाद 490 रुपये किलो कर दी गई। परचून में दाल माश 20 रुपये महंगी होकर 515 रुपये किलो कर दी गई। होल सेल में दाल मूंग 50 रुपये महंगी होकर 270 रुपये किलो हो गई। परचून में दाल मूंग 40 रुपये इजाफे से 284 रुपये किलो दस्तियाब है। चने की दाल 38 रुपये महंगी करके 242 रुपए की कर दी गई। बासमती चावल होलसेल में 330 और परचून में 347 रुपए किलो में दस्तियाब है। टोटा चावल होलसेल में 185 और परचून में 194 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची की जानिब से अशिया महंगी करने के खिलाफ शहरी भी फट पड़े। कहते हैं कि पहले ही महंगाई से परेशान हैं, ऊपर से अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। हम तो वही चक्की में पीस रही है, सुबह को आती है, रात को जाती है। सर आपके सामने सारी कराची का हालात कि कोई भी किसी चीज़ पे अमल होता नहीं है, तो ये तो आपको पता ही है। पुराने हिसाब से वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। किसी चीज़ का भी कोई रेट आ जाए, कभी भी कराची में कोई रेट पाबंदी नहीं हुई। अगर कोई कदम उठा सकता तो आवाम मिल के उठाए। अगर कमिश्नर अपना रेट देगा तो अपनी मर्ज़ी से देगा तो कुछ भी नहीं, पहले इसको सर्वे करे,
मार्केट की हमारी यूनियन है, उनसे आप बैठे रेट फिर कंसर्न करें कि क्या मार्केट चल रही है और क्या रेट ये बेच सकते हैं, उस हिसाब से आप लिस्ट करेंगे तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कमिश्नर कराची ने मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत भी जारी कर दी। मुर्गी का गोश्त 527 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 550 रुपये किलो में दस्तयाब है। कमिश्नर कराची सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। आगे बढ़ते हैं। कराची इंतजामिया रिटेलर से मुबैना तौर पर भत्ता वसूल करने लगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने इल्जामात की बारिश कर दी। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है कि कराची इंतजामिया रिटेलर से भत्ता वसूल करके लूट मार की इजाज़त देती है। रिटेल में सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाना इंतजामिया के बेबसी की बात नहीं है, इनके बस की ही बात नहीं है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल देखिए, आवाम को रिलीफ देने के इकदाम बेसूद साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने एक बार फिर अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है दालों और चावल की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। इससे कबल जो रेट लिस्ट जारी की गई थी उसमें कुछ और रेट था और अब जो नई लिस्ट आई है उसमें कुछ और रेट है। अब देखा इजलास में जो है वो होलसेल ग्रोसर्स की भी नुमाइंदगी नहीं थी, रिटेलर्स भी शामिल नहीं हुए। इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं। मेरे साथ होलसेल ग्रोसर्स के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वही बताइएगा, फिर इजलास हुआ, आप लोग गए भी नहीं, तो क्या कहेंगे जो नई लिस्ट आई है उसमें अमल हो सकता है? नहीं हो सकता। देखें, होलसेल पे तो रेट हैं, ये हमने माना 10-20 रुपए कम किए हैं, लेकिन रिटेल बेस पे कौन अमल कर सकता है? मुझे बताएं, कमिश्नर, डीसीज, तमाम एसीज, मुख्तार कार ये अमल करा लेंगे? लाखों दुकानें हैं। ये जो आप इम्प्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं रिटेल पे इम्प्लीमेंट कराने वाले असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, इसके नीचे इनके टाउट होते हैं जो ये बत्ता बांधते हैं। जब जाके ये उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। जब कोई हाथ नहीं डालेगा तो इन पे हाथ डलवाने वाला कौन होगा? जब जाहिर सी बात है कि इस पे मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इन्फॉर्म करूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। रिलीफ पहुँचता नहीं है। बिल्कुल, अब्दुर्रऊफ इब्राहिम मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन रवायती तौर पर यह देखा जाता है कि निकनामा जारी कर दिया जाता है, लेकिन रिटेल की सतह पर अमल दरामद नहीं होता और जो दुकानदार है वो मनमानी कीमत पर अशिया को फ़रोख्त करते हैं। ओवरऑल भी मार्केट का विजिट भी किया है तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि रिटेल की सतह पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और जो कार्रवाइयाँ वो भी सिर्फ होलसेल की सतह पर होती हुई दिखाई देती हैं। जी। मैट्रिक बोर्ड इम्तहानात बोर्ड की नहली का पर्दा चाक, सेंटर्स की तब्दीली पर चेयरमैन बोर्ड का सियासी। शहनाज इस्लामिक स्कूल एक मरतबा फिर इम्तहानी सेंटर में तब्दील। आज भी नकल माफिया का राज। 9वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा भी वक्त से पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन और DC कोरंगी का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर छापा। नकल में मुलविस 7 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मैट्रिक के इम्तहानात बोर्ड की नाअहली के बायस मजाक बन गए। नकल माफिया का राज कम ना हो सका। कई निजी स्कूलों में कायम इम्तहानी मराकिज पर बोर्ड अफसरान ही कार्रवाई में रुकावटें डालने लगे। शहनाज इस्लामिक स्कूल एक मरतबा फिर इम्तहानी सेंटर में तब्दील। सिटी 21 की निशानदही पर मुतालका स्कूल का सेंटर खत्म किया गया था। इम्तहानी मरकज की तब्दीली का लेटर निकलने के बाद सियासी जमात की मदाखलत हुई। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने बरमला कहा था कि कोई मेरा सेंटर तब्दील नहीं करा सकता है। शहनाज एजुकेशनल एकेडमी का मैं तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि जितने भी बच्चों को ये खबर मालूम हुई थी, आज गालिबन रात के वक्त या शाम के वक्त कि उनका सेंटर चेंज हो चुका है, इस खबर में अभी तक कोई सदाकत नहीं है। तो तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि सुबह अपना अपना इम्तिहान अपने मुताल्लिका सेंटर में ही दीजिएगा जहां पर आप पहले अपने इम्तिहान देते आ रहे हैं। और हुआ भी यूं ही, स्कूल दोबारा सेंटर बन गया। मीडिया के पूछने पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। बोले सेंटर तब्दील किया तो पता चला कि लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने मिनिस्टर साहब से राब्ता किया है। हमने बेहतर समझा कि सेंटर को वहीं रखा जाए। रात भर में हमें जो है वो पता चला कि लोग जो है रास्ते पे आ गए हैं और टायर जला रहे हैं और उससे उनका प्रॉब्लम हो गया। तो मैं जो है वो अपने जो है हाई अप से ऑर्डर मिला कि ये रात के टाइम पे और शाम के टाइम पे क्यों आपने सेंटर चेंज किया है। कि बच्चे शायद बहुत सारे लोगों ने जो है वो कांटेक्ट किया था मिनिस्टर साहब से वगैरह कि आप सेंटर चेंज करने से बच्चों को जो ज़हनी अर्जत होती है, एक दिन एक सेंटर में जाएँ, दूसरे दिन दूसरे सेंटर में जाएँ।
तो हमने बेहतर समझा कि सेंटर को जो है वो वहीं पर रखा जाए। बोर्ड जब इतना कमजोर हो तो फिर नकल माफिया का ही राज होता है, इसलिए क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर भी आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप में हल पर्चे वक्त से पहले ही वायरल हो गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कराची यार मोहम्मद बलादी, डिप्टी कमिश्नर सैयद जवाद और असिस्टेंट कमिश्नर इमरानुल हक ने इम्तिहानी मराकिज पर छापे मारे और नकल में मुलव्विस 7 अफराद धर लिए गए। ऑरेंज लाइन बस के मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत, बस मंसूबे को ग्रीन लाइन से जोड़ दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम की फलाह के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी इक़दाम उठा रहे हैं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ऑरेंज लाइन के रूट में तोसी कर दी गई। आधा किलोमीटर का फासला करके बस मंसूबे को ग्रीन लाइन से जोड़ दिया गया। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट ने तफसील बता दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इस इकदाम से ऑरेंज लाइन बजरिया बस मुसाफिर ग्रीन लाइन तक पहुँच सकेगी। हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। हमारा हर इकदाम अवाम की फलाह के लिए है। लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो ऑरेंज लाइन में सफ़र करके ऑरेंज लाइन के आखिरी स्टॉप पे उतरता है, फिर उसको एक आधा किलोमीटर या तो पैदल जाए या कोई रिक्शा टैक्सी करके जाए और फिर वो जो है और वो फिर ग्रीन लाइन जो है वो उसमें सफ़र करना पड़ता है। तो वो उसको इंटीग्रेशन नहीं है। तो हमने ये फैसला किया कि हम ऑरेंज लाइन BRT को कि अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये इस वक्त टेम्पररी इंटीग्रेशन हमने शुरू की है, आज से करने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि ऑरेंज लाइन अपनी BRT के ट्रैक पे जाएगी। BRT ट्रैक से जब उसका ट्रैक ख़त्म होगा वहाँ से फिर वो नॉर्मल रोड पे जाएगी। वज़ीर इत्तलात एक मरतबा फिर बानी PTI के खिलाफ तनकीद के नश्तर बरसाते दिखाई दिए। बोले वो शख्स लाडला है जिसके पीछे इसे लाने से छुपाने तक मास्टर प्लान है। अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बानी PTI एक छोटी सोच का एक छोटा शख्स है जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत चीज़ें सिखाई हैं। कभी बर्दाश्त का माहौल नहीं सिखाया, कभी टॉलरेंस की चीज़ नहीं दिखाई। वो ही हिमसेल्फ एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर है। BRT ऑरेंज और ग्रीन लाइन के जनरल मैनेजर अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि किराए में से 5 रुपए का इजाफा किया गया है। मुसाफिर से 25 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। फेयर इसका वही है 20 रुपए, मगर 5 रुपए बढ़ाएं इसलिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का स्लैब है नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हम ऑपरेट करते हैं। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट ने मंशियात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया है। कैमरामैन शाजिब के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात आम की पैदावार के लिए बड़ा ख़तरा बन गए हैं। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद का मज़ीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला 20 मई को पाकिस्तान की मैंगो की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। इस साल का जो हमारा टारगेट है 1 लाख टन और $90 मिलियन हम हासिल करेंगे, क्योंकि इस साल फसल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है पाकिस्तान की 18 लाख टन है, जो पंजाब की 70% है, सिंध की 29% है और खैबर पख्तूनख्वा की 1% है। टोटल प्रोडक्शन 18 लाख में से हमारी 12 लाख टन रह गई है, क्योंकि पंजाब में 40 से 45% फसल कम है और सिंध में 20 से 25% कम है। तो टोटल हमारी 18 लाख में से 12 लाख प्रोडक्शन रह गई है। उसकी मेन वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज, जो सर्दियां देर तक रही और गर्मियां देर को शुरू हुई और एकदम से टेम्परेचर ऊपर गया, इससे आपके पैटर्न चेंज होते हैं। पिछले साल सिंध की बहुत ख़राब क्रॉप थी और इस साल पंजाब की ख़राब रही ज़्यादा, और अभी तो सीज़न स्टार्ट भी नहीं हुआ पंजाब का, एंड ऑफ जून में होगा। मुझे उम्मीद है कि ये इससे ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता मौसम ख़राब रहा, आंधी तूफान आया, तो फिर ये और भी प्रोडक्शन कम हो सकती है। ये टारगेट हम इंशाल्लाह अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम 40 मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हमारा इस साल जो वैल्यू मार्केट है उसको फोकस है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया के। यहाँ से हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जो ईरान के इश्यूज आ रहे हैं FI के, जो बैंक इशू नहीं कर रहे, मुझे उम्मीद है कि स्टेट बैंक इस मसले को देखेगा और हमारी मिनिस्ट्री भी देखेगी, क्योंकि ईरान का जो वॉल्यूम है टोटल एक्सपोर्ट का, उसके अंदर ईरान का जो शेयर है 35 से 40% है। और
खेल के मैदान से खबर है, कराची ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी कराची की टीम ने जीत ली है। फाइनल मैच में हैदराबाद की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। कराची ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी शहर कायद के खिलाड़ियों ने फतह कर ली। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मैच में हैदराबाद ने पहले बैटिंग करके 18 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 165 का हदफ दिया। हैदराबाद के बल्लेबाज अमजद हुसैन ने 28 गेंदों पर 38 रन स्कोर किए। कराची की टीम 10 विकेटों से फतह ठहरी। ताहिर अली और अयूब खान ने बल्लेबाजी के खूब जोर दिखाई। ताहिर अली ने 35 गेंदों पर 71 रन बनाए, जबकि अयूब खान ने 31 गेंदों पर 59 रन स्कोर किए। कराची टीम ने कप्तान अब्दुल वहाब और खिलाड़ी ताहिर अली का कहना था कि टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप की तैयारी में बहुत मदद मिली। इवेंट में कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाया गया है। ये हम होस्ट भी थे और हमने इस टूर्नामेंट को जीतना भी था, दोनों जिम्मेदारियां थी। सो दोनों में हमने कोशिश की कि हॉस्पिटैलिटी में भी हम अप टू द मार्क रहें और इस मैच को, इस टूर्नामेंट को भी जीतें। तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी हमें कि हम ये टूर्नामेंट जीते। बाकी वर्ल्ड कप की जो तैयारी है वो डेफिनेटली हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो वो वर्ल्ड कप की तैयारी का सिलसिला है। सो हमारे कुछ प्लेयर ने अच्छा खेला है। आज हमारा फाइनल था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी बैटिंग हुई और सबसे बड़ी बात है ग्राउंड बड़ा अच्छा था, उसका क्या नाम है, रनिंग उसकी अच्छी थी बॉल की, और नए लड़के भी ऊपर आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनको खिला रहे हैं। हैदराबाद के कप्तान उबैदुल्ला का कहना था कि हार जीत खेल का हिस्सा है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल पेश किया। हमारे पास यंग प्लेयर ज़रूर हैं, जैसे कि इस दफ़ा मोहम्मद सलमान भी टू हैं लेफ्ट हैंड, वो उनका पहला ही टूर था, तो तीनों चारों मैचों में उन्होंने तकरीबन 200 के करीब स्कोर किया हुआ है। तो हमारी सारी टीम माशाल्लाह यंग प्लेयर्स पे, तो कराची के पास एक्सपीरियंस है, ताहिर अली जैसे और अयूब खान जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा रहा ये टूर हमारा। मैच के इख्तिताम पर फातेह और शिकस्त पाने वाली टीमों को ट्रॉफियां दी गईं। कैमरामैन गुलफाम के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।